بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ افغان فائرنگ کا ایک اور واقعہ، پاکستانی سویلین ہلاک، کئی زخمی، چمن میں ایمرجنسی لگا دی گئی۔ یو این ادارے سے نکالنا عالمی چارٹر کی خلاف ورزی ہے، ایران نے کیا غصے کا اظہار، کہا امریکہ مرضی تھوپ رہا ہے۔ آتش فشاں پھٹ سکتا ہے، الیکشن سے پہلے ٹنیشیا کے سابق صدر نے دی وارننگ، کہا انقلاب کو ناکام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یوکرین اور رشیا کے بیچ قیدیوں کا تبادلہ، درجنوں رہا، امریکی شہری بھی شامل۔ یوکرین کے کئی علاقوں میں لڑائی تیز، یونائیٹڈ نیشنز نے سویلین ہلاکتوں کے فگرز جاری کیے۔ برطانیہ کی تاریخ میں نرسوں کی سب سے بڑی ہڑتال شروع، تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے پر احتجاج۔ چائنا سرحد کے قریب انڈین ایئر فورس کی مشقیں، عہدیداروں نے کہا اروناچل جھڑپ سے تعلق نہیں۔ نیرو مودی کو لگا دھکا، انڈیا حوالگی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کر سکیں گے۔ G20 صدر کی حیثیت سے انڈیا نے کیے پہلی دستاویزات پر دستخط، یونائیٹڈ نیشنز میں کشمیر مسئلہ اٹھانے پر جے شنکر پاکستان پر برس پڑے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ سرحدی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر چمن سرحد پر افغان فوج نے فائرنگ کی، جس سے کم ایک سویلین ہلاک ہوا اور 15 زخمی ہوئے۔ حال ہی میں ایسا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ایک ہفتے میں دوسرا واقعہ اور پہلے واقعے میں اور زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ جب سے پچھلے سال اگست میں افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے، سرحدی مسائل پھر سے تازہ ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے اسپن بولدک ضلع میں مقامی طالبان کمانڈر مولوی محمد ہاشمی نے طلوع نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان اور پاکستانی فوج کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے اور اس سلسلے میں بات چیت کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی فوج نے کہا کہ اس نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ 10 دسمبر کو افغان فوج کی فائرنگ میں 6 پاکستانی سویلینز ہلاک ہوئے تھے اور 17 زخمی ہوئے تھے۔ جمعرات کو ہونے والی فائرنگ میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان میں 2 عورتیں اور 3 بچے بھی شامل ہیں۔ چمن میں پاکستانی عہدیداروں نے ایمرجنسی لگا دی ہے، سویلینز کو بعض علاقوں کو خالی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کوئٹہ کے ہاسپٹلز میں بھی ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ عہدیداروں نے کنفرم کیا ہے کہ کم سے کم ایک شہری جاں بحق ہوا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستانی فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ افغانستان کی طرف کیا نقصان ہوا۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں بعض فلسطینی علاقوں کے لیے پانی کی سپلائی بند کر دی ہے۔ سینکڑوں فلسطینی پانی کے بغیر رہنے پر مجبور ہیں، ان میں جریکو کا ایک علاقہ بھی شامل ہے۔ مغربی کنارے اور قدس پر اسرائیل نے 1967 میں قبضہ کر لیا تھا، تب سے اس نے ان علاقوں میں 230 سے زیادہ یہودی بستیاں بسائی ہیں۔ ان میں 6 لاکھ اسرائیلی رہتے ہیں اور ان بستیوں کے بیچ فلسطینی علاقے بھی ہیں۔ حالیہ عرصے میں ان علاقوں میں تناؤ کافی بڑھ گیا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی سالگرہ کے حوالے سے ہزاروں فلسطینیوں نے غزہ میں جمع ہو کر طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر ایک میلے کا اہتمام کیا گیا۔ پرجوش فلسطینی حماس کے ہرے جھنڈے لہرا رہے تھے اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ کئی فلسطینی فوجی لباس پہنے ہوئے تھے۔ فلسطینی اتھارٹی نے جو مغربی کنارے پر کنٹرول رکھتی ہے الخلیل یا ہیبرون ٹاؤن میں دھاوے کرتے ہوئے حماس کے بعض ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی، جو حماس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔
सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने हुदैदा के करीब 2 फ्यूल टैंकर्स को जब्त कर लिया है और उन्हें हुदैदा बंदरगाह पर रुकने से रोका है। हालिया अरसे में ऐसे और भी कई वाक़यात पेश आए हैं। यमन सऊदी इत्तेहाद की नाकाबंदी का शिकार है। यमन पेट्रोलियम कंपनी के एक तर्जुमान ने बताया कि इन जहाज़ों पर हज़ारों टन डीजल लदा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये जहाज़ सिविलियन थे और उनके पास मुनासिब दस्तावेज़ात थी, इसके बावजूद उन्हें जब्त किया गया। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस की औरतों से मुताल्लिक़ ग्रुप से उसे निकालने पर गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि इस करारदाद को नाजायज़ तरीक़ों से मंजूर कराया गया है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि यह कदम सियासी महरक़ात पर मबनी है और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने यह करारदाद पेश की थी। ईरान में महसा अमीनी की मौत पर एहतजाज और क्रैकडाउन के पस मंज़र में यह कार्रवाई की गई है। 54 रुकनी इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने यह करारदाद मंजूर की। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने तेहरान में कहा कि ये आलमी इदारे पर मर्जी थोपने की अमरीका की कोशिश है। ईरानी तर्जुमान ने निशानदही की कि यह करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर नहीं की गई है। ईरान के अपोजिशन कारकुनों ने UN इदारे के इस फैसले की तारीफ़ की है। इस करारदाद की मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत की ज़रूरत थी। ईरान के इत्तेहादी रशिया और चाइना ने इसकी मुखालफत की। 29 मुल्कों ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, 8 ने मुखालफत की और 16 गैर हाजिर रहे। इसका ये मतलब है कि फौरी असर के साथ ईरान औरतों के स्टेटस से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के कमीशन से बाहर हो जाएगा। ईरान में सितंबर से मुजाहरे हो रहे हैं। इन मुजाहरों के दौरान झड़पें भी हुई हैं। झड़पों के सिलसिले में 2 लोगों को फांसी दी गई है और 400 से ज़्यादा लोगों को कैद की सज़ाएं दी गई हैं। ईरान के कुर्द लड़की महसा अमीनी को ईरान की अखलाकी पुलिस गश्त इरशाद ने मुनासिब लिबास न पहनने पर हिरासत में लिया था और हिरासत में उसकी मौत हो गई। तब से ये एहतजाज हो रहा है। 2011 के इनकलाब के बाद ट्यूनीशिया के पहले सदर बनने वाले मुनसिफ मरज़ुकी ने कहा कि अरब में एक आतिशफ़िशा फट सकता है। अल जज़ीरा चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने ये वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सदर कैस सईद मुल्क में इनकलाब मुखालिफ ताकतों का हिस्सा हैं। 2010 के आखिर में अरब बहार ट्यूनीशिया से ही शुरू हुई थी। हफ्ते को ट्यूनीशिया में पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले हैं। मुनसिफ मरज़ुकी ने कहा कि मौजूदा लीडर कैस सईद काउंटर रेवोल्यूशन का हिस्सा है और ये लोग इनकलाब को नाकाम बनाना चाहते हैं। जुलाई में सदर ने एक रेफरेंडम कराया था जिसके बाद एक नया दस्तूर लागू किया गया। मरज़ुकी ने कहा कि एक बार फिर एक आदमी की हुकूमत आ रही है, तमाम इख्तियारात एक आदमी के पास जा रहे हैं। यही हम इनकलाब के बाद नहीं चाहते। एक शख्स की मर्जी ने इराक़ को तबाह कर दिया, सीरिया को तबाह कर दिया, लीबिया को तबाह कर दिया। ये शख्स पुराना सियासी निज़ाम लाना चाहता है। उसका वही हशर होगा जो इससे पहले के लोगों पर हुआ है, क्योंकि एक शख्स की हुकूमत मुल्क में नहीं हो सकती। कैस सईद 2019 के इलेक्शंस में सदर चुने गए थे। मुनसिफ मरज़ुकी ने कहा कि जमहूरियत फौरी नतीजे नहीं दे सकती। लोग बेसब्रे हैं क्योंकि वो डिक्टेटरशिप के दिनों में काफ़ी तकलीफ़ें उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक ऐसा सियासतदान है जो कह रहा है कि जमहूरियत ने कुछ नहीं किया है, ये लोग सिर्फ बातें करते हैं और उनके करप्शन की तरफ देखो। लबनान में यूनाइटेड नेशंस के काफ़िले पर हमले में आयरलैंड का एक सिपाही हलाक हो गया। ये सिपाही UN अमन मिशन के लिए काम कर रहा था। इस काफ़िले पर फायरिंग की गई। एक दूसरे सिपाही की हालत नाजुक है। यूनाइटेड नेशंस की अमन फ़ौज ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। हिज़्बुल्लाह के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि इस वाक़े में उनका कोई रोल नहीं है। अब बात यूक्रेन की। यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक समझौते के मुताबिक दर्जनों कैदियों का तबादला हुआ है। इनमें एक अमरीकी शहरी भी शामिल है। यूक्रेन जंग तकरीबन 10 महीनों से जारी है। इस समझौते के तहत 64 यूक्रेनी सिपाहियों और एक अमरीकी शहरी को छोड़ा गया है। सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के दफ्तर ने यह बात बताई। इस दफ्तर के एक ओहदेदार ने रिहा किए गए अमरीकी शहरी की पहचान सोडी मोकेंजी की हैसियत से की है। बताया गया कि वो गिरफ्तारी से पहले यूक्रेन के लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन इस बारे में और तफसीलात नहीं बताई गई। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने रिहा किए गए अमरीकी शहरी का नाम नहीं बताया और कहा कि यकीनन हम इस खबर से खुश हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में लड़ाई तेज़ हो गई है। एक दिन पहले दारुल हुकूमत कीव पर खौफनाक हमले किए गए थे। 24 फरवरी को रशिया के हमले शुरू होने के बाद से हज़ारों लोग हलाक और लाखों बेघर हुए हैं। कई शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। रशिया ने क्रिसमस के मौके पर जंगबंदी के बारे में कोई तजवीज़ मिलने से इनकार किया है। यूक्रेन जंग के 295 दिन पूरे हो गए हैं।
यूक्रेन के सदर वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि महाज जंग पर खामोशी नहीं है। उन्होंने कहा कि रशिया तोपखाने के जरिए शहर के शहर तबाह कर रहा है। बरतानिया की तारीख में पहली बार नर्सों ने बड़े पैमाने पर मुजाहरा करते हुए हेल्थ सिस्टम को ठप कर दिया। इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड में 2 दिन की हड़ताल करने का फैसला किया गया है। नर्सेस तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रही हैं। 20 दिसंबर को भी ऐसी ही हड़ताल की जाएगी। इसे बरतानिया की तारीख में नर्सों की सबसे बड़ी हड़ताल कहा जा रहा है। बरतानिया में नर्सों की हड़ताल एक अनोखी बात है। नर्सेस की तंजीम चाहती है कि तनख्वाहों में 19% इजाफा किया जाए। उनका कहना है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। कोविड-19 की वबा और उसके बाद यूक्रेन जंग की वजह से बरतानिया और दूसरे यूरोपीय मुल्कों की मईशत चरमरा गई है और मेयार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हर जगह काफ़ी बढ़ गई है। यूनाइटेड नेशंस ने यूक्रेन में हलाकतों के ताल्लुक से बाज़ तफसीलात जारी की हैं। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक इदारे के चीफ ने कहा कि जंग के शुरू दिनों में कम से कम 441 शहरी हलाक हुए, यानी शुरू के 41 दिनों में कम से कम 441 शहरी हलाक हुए, जिनमें 8 बच्चियां शामिल है। साउथ अमेरिका के मुल्क पेरू की हुकूमत ने मुजाहरों के दौरान इमरजेंसी लगा दी है। इस तरह पुलिस को खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए हैं। अब लोगों के जमा होने के हक़ को भी ख़त्म कर दिया गया है। डिफेंस मिनिस्टर ने यह बात बताई। 1 हफ्ते से पेरू में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहरों के दौरान झड़पें भी हुई। इन झड़पों में अब तक कम से कम 8 लोग हलाक हो चुके हैं। ये मुजाहरे उस वक्त शुरू हुए जब 7 दिसंबर को साबिक सदर पेट्रो गेलिस्किया को हटाया गया। गेलिस्किया को एक लेफ्टिस्ट लीडर के तौर पर जाना जाता है। उन्हें बाज़ इल्ज़ामात पर 2021 में गिरफ्तार किया गया था। लौटते हैं इंडियन एयरफोर्स ने चाइना की सरहदों के करीब जंगी मशक़ें शुरू की हैं। ये मशक़ें 2 दिन जारी रहेंगी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के अहदेदारों ने बताया कि इन मशक़ों का ताल्लुक पिछले हफ्ते की सरहदी झड़पों से नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में एक बयान देते हुए कहा था कि इंडियन सिपाहियों ने अरुणाचल प्रदेश में चाइना के फ़ौजियों को इंडिया के इलाके में दाखिल होने से रोका था। इस वाक़े पर पार्लियामेंट में खूब गड़बड़ भी हुई। खबरों में कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स के जंगी हवाई जहाज़ों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में उड़ानें भरी। यह वही सेक्टर है जहां पर 9 दिसंबर को झड़पें हुई थी। चाइना भी अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश करता है। एयरफोर्स ने कहा कि उसकी ईस्टर्न कमांड जुमे को भी मशक़ें करेंगी। एयरफोर्स ने कहा कि ये मशक़ें पहले से तय की गई थीं और हालिया वाक़यात का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तवांग में 9 दिसंबर की झड़पों में दोनों तरफ के सिपाही ज़ख्मी हुए हैं। हीरों के फरार ताजिर नीरव मोदी को उस वक्त धक्का लगा जब बरतानिया की हाई कोर्ट ने उसे इंडिया हवाले करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की दरख्वास्त की इजाज़त नहीं दी। नीरव मोदी को इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के इल्ज़ामात का सामना है। उसने लंदन हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की थी और इजाज़त मांगी थी कि वो अपनी हवालगी के हुक्म के ख़िलाफ़ अपील करना चाहता है। इस तरह नीरव मोदी की हवालगी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया गया है। अब नीरव मोदी के पास रास्ते बहुत कम रह गए हैं। 51 साला हीरों के ताजिर पर इल्ज़ाम है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक को तकरीबन $2 बिलियन का धोखा दिया है। इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर मसला उठाने पर पाकिस्तान पर तनकीद की है और कहा है कि पाकिस्तान ने अलकायदा लीडर ओसामा बिन लादेन की मेज़बानी की थी और एक पड़ोसी मुल्क की पार्लियामेंट पर हमला कराया था। ऐसे मुल्क को यूनाइटेड नेशंस के इदारे में वाज़ो नसीहत करने का कोई हक़ नहीं है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की साख का दारोमदार इस बात पर है कि वो किस तरह हमारे दौर के चैलेंजेस का जवाब देता है। जयशंकर ने G20 सदर की हैसियत से बाज़ दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का दौरा किया। वो मंगल को यूएन पहुंचे और 2 तकरीबात की सदारत की। 1 दिसंबर को इंडिया ने G20 की सदारत संभाली थी। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने काउंसिल में ख़िताब करते हुए कश्मीर का मसला उठाया। पाकिस्तान अक्सर यूनाइटेड नेशंस और दूसरे आलमी फोरम्स में कश्मीर का मसला उठाता है। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और इंडिया की G20 सदारत और दूसरे मामलात पर बातचीत की। स्पोर्ट्स फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस और अर्जेंटाइन का मुकाबला तय हो गया है। यह फाइनल इतवार को खेला जाएगा। कल रात दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया। फ्रांस ने फाइनल में अपनी जगह ज़रूर पक्की की है, लेकिन मोरक्को ने इस शिकस्त के बावजूद करोड़ों फुटबॉल फैंस के दिलों में जगह बनाई है। इस टूर्नामेंट में मोरक्को की टीम ने कई बड़ी टीमों को हराया है, जिनमें पुर्तगाल और स्पेन भी शामिल है।
فرانس کی شکست کے بعد بھی موراکو کے کھلاڑیوں نے میدان میں سجدہ کیا. انہوں نے اپنے فینس کا شکریہ ادا کیا. اس دوران کئی فینس نے سوشل میڈیا اور دوسرے فورمز کے ذریعے کہا کہ موراکو کی ٹیم حقیقی معنوں میں چیمپئن ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. افغان فائرنگ کا ایک اور واقعہ، پاکستانی سویلین ہلاک، کئی زخمی، چمن میں ایمرجنسی لگا دی گئی. یو این ادارے سے نکالنا عالمی چارٹر کی خلاف ورزی ہے. ایران نے کیا غصے کا اظہار، کہا امریکہ مرضی تھوپ رہا ہے. آتش فشاں پھٹ سکتا ہے، الیکشن سے پہلے ٹنیشیا کے سابق صدر نے دی وارننگ، کہا انقلاب کو ناکام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. یوکرین اور رشیا کے بیچ قیدیوں کا تبادلہ، درجنوں رہا، امریکی شہری بھی شامل. یوکرین کے کئی علاقوں میں لڑائی تیز، یونائیٹڈ نیشنز نے سویلین ہلاکتوں کے فگرز جاری کیے. برطانیہ کی تاریخ میں نرسوں کی سب سے بڑی ہڑتال شروع، تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے پر احتجاج. چائنا سرحد کے قریب انڈین ایئر فورس کی مشقیں، عہدیداروں نے کہا اروناچل جھڑپ سے تعلق نہیں. نیرو مودی کو لگا دھکا، انڈیا حوالگی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کر سکیں گے. G20 صدر کی حیثیت سے انڈیا نے کیے پہلی دستاویزات پر دستخط. یونائیٹڈ نیشنز میں کشمیر مسئلہ اٹھانے پر جے شنکر پاکستان پر برس پڑے. یہ تھی آج کی خبریں. شیجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.